Very good morning to everyone. We are going to start with the international trade theory. Today we will discuss the factor endowment theory, which was given by the Heckscher-Ohlin. It is also known as Heckscher-Ohlin theorem or factor endowment theory. First of all, we should know the background of the theory. Then we will discuss the theory, assumptions, and theory. The theory was developed by the Swedish economist Bertil Ohlin on the basis of work by his teacher, the Swedish economist Philip Heckscher. Therefore, it is known as the Heckscher-Ohlin theory. Bertil Ohlin was in 1899 to 1979, and the time period of Eli Philip Heckscher is 1879 to 1952. In recognition of his ideas as described in his path-breaking book, Inter-Regional and International Trade, which was published in 1933, for his book on the theory, Ohlin was awarded the Nobel Prize for Economics. Thus, this Nobel Prize, which is given in the field of economics, that is the Severus Bank Prize in Economic Science in the memory of Alfred Nobel. Actually, this is given by the Riksbank, Riksbank of the Switzerland, and all other the prize which are known as the Nobel Prize in the field of science, physics, chemistry, or in the field of medicine, literature, peace. Every Nobel Prize is given by the Nobel Foundation, but this the economics Nobel Prize is given by the Severus Bank, which is the Bank of Switzerland. He got this prize for this international trade theory, which is known as the factor endowment theory in 1977. Ohlin served as head of the Liberal Party in Sweden from 1944 to 1967. He was a member of the Riksdag, which is the Parliament of the Switzerland, from 1938 to 1970, and was Minister of Commerce from 1944 to 45 in Sweden's wartime government. As you know, this is the time of Second World War. Therefore, it is written here that this is the wartime government. So then he served as the Minister of Commerce for the Switzerland. The Heckscher-Ohlin theory, the definition is a nation will export the commodity whose production requires the intensive use of the nation's relative abundant and cheap factor, and import the commodity whose production requires the intensive use of the nation's relatively scarce and expensive factor. Or the relatively labor rich nation exports the relatively labor intensive commodity and imports the relatively capital intensive commodity. This means that nation one exports X because X is the less uh, intensive commodity and L is relatively abundant and cheap factor in nation one. देखिए इसको बैकग्राउंड में थोड़ा सा हम ले चलते हैं कि एक कंट्री है। अभी तक हम लोगों ने ये कहा था कि किसी भी कंट्री को उस कमोडिटी का एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसको ज्यादा एक्सपर्टाइज है प्रोडक्शन करने में, और उस कमोडिटी का इंपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसको लेस एक्सपर्टाइज है प्रोडक्शन करने में. मींस द बेसिस ऑफ द ट्रेड वाज द एक्सपर्टाइज ऑफ द प्रोडक्शन. लेकिन प्रोडक्शन के लिए
हमने माना था कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी थी या एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी थी, वहां पर हम लोगों ने ये माना था कि देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज लेबर एंड कैपिटल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये एक्सपर्टाइज तब होता है जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो या टेक्नोलॉजी आल्सो प्लेज ए वाइटल रोल इन हैविंग द एक्सपर्टाइज ऑफ द प्रोडक्शन। लेकिन एक्चुअल पोजीशन ये होती है कि किसी भी देश में कई बार ऐसा होता है कि लेबर या जिसको हम स्किल्ड लेबर कह रहे हैं, स्किल्ड लेबर ज्यादा होगा, और कुछ देश ऐसे होंगे जहां पर कैपिटल ज्यादा होगी। तो ऐसे में जो कैपिटल जहां पर ज्यादा होगा वो देश टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ज्यादा अडॉप्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास कैपिटल ज्यादा है। जैसे अब हम एग्जांपल ले लें अमेरिका का और इंडिया का। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पर लेबर ज्यादा होगा। अमेरिका में पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में कम है, लेकिन उनके पास कैपिटल ज्यादा है, पूंजी ज्यादा है। तो उनको पूंजी इंटेंसिव टेक्निक, अगर हम किसी भी चीज में ज्यादा पूंजी लगा करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, कम लेबर लगा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम लेबर ज्यादा लगा करके और कम पूंजी लगा करके प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो जिसके पास लेबर ज्यादा होगा वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगा, जिसके पास कैपिटल ज्यादा होगा वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगा। तो अब जैसे हमने अमेरिका का एग्जांपल लिया, तो अमेरिका स्वाभाविक सी बात है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगा, और इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगा, अपनाना चाहिए, ऐसा हेक्सर थ्योरी भी कह रहा है। और द बेसिस ऑफ द ट्रेड, जो ट्रेड का जो बेस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि अमेरिका के पास क्योंकि पूंजी ज्यादा है और लेबर कम है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाए, उसी प्रोडक्ट को बनाए और वो इसको एक्सपोर्ट कर दे इंडिया को। और इंडिया के पास क्योंकि लेबर ज्यादा है तो लेबर को भी यूटिलाइज करना है, ऐसा तो है नहीं कि लेबर को अबेंडन छोड़ देना है। तो ऐसे में इंडिया को लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाना चाहिए, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपना करके जो प्रोडक्ट है उसको अमेरिका को एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। देन अमेरिका का कैपिटल यूटिलाइज हो जाएगा और इंडिया का लेबर यूटिलाइज हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड के लेवल पर अगर हम देखें तो लेबर भी यूटिलाइज हो गया, कैपिटल भी यूटिलाइज हो गया, यानी कैपिटल भी अबैंडन नहीं है, लेबर भी अबैंडन नहीं है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो रहा है, और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज हैं। उनको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में एक्सपर्टाइज है, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक में एक्सपर्टाइज है, एंड द बेसिस ऑफ द ट्रेड विल बी इन द फेवर ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। तो दिस शुड बी द फेवर बेसिस ऑफ द ट्रेड। यही लास्ट लाइन में कहा गया है, दिस मीन्स दैट नेशन वन, अगर मान लें हम नेशन वन है अमेरिका और एक्सपोर्ट्स यक्स, यक्स मतलब लेबर कैपिटल इंटेंसिव, बिकॉज यक्स इज द less intensive commodity and L is relatively abundant and cheap factor in the nation one। हम यही कह रहे हैं कि अगर चीप फैक्टर हम मान लें वहां कैपिटल है, कैपिटल इजीली अवेलेबल है, और लेबर वहां पर कम अवेलेबल है, तो उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपना करके कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को इंडिया को यानी वाई कंट्री में भेजना चाहिए, और वाई कंट्री यानी इंडिया को लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपना करके कैपिटल चूंकि उसके पास कम अवेलेबल है तो उसको अमेरिका को भेजना चाहिए। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ द थियरी। नाउ हमने बहुत बार कहा है कि देखिए कोई भी थियरी, इकोनॉमिक्स के फील्ड में कोई भी थियरी हो उसके एजम्पशंस जरूर होते हैं, क्योंकि बिना एजम्पशंस के हम किसी भी थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो फॉर द एक्सप्लेनेशन वी ऑलवेज टेक द assumptions।
तो एजम्पशंस क्या क्या है इसकी, हमने पहले ही बताया। देयर आर टू नेशंस, मान लीजिए दो देश हैं, अमेरिका और इंडिया। देयर आर दे आर प्रोड्यूसिंग टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, मान लीजिए एक्स, हमने अमेरिका की बात की, एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो कैपिटल इंटेंसिव है, और इंडिया वाई कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, ये लेबर इंटेंसिव है। एंड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल। तो the used to illustrate the theory in two dimensional figure। देखिए इसको हम कई बार 2x2x2 का भी हम थियरी कहते हैं। हेक्स्टर-ओलन थ्योरम को कभी अगर एग्जाम में पूछा जाता है, 2x2x2, 2 दो गुणे दो गुणे दो, अर्थात दो नेशन है, दो कमोडिटी है और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसीलिए इसको 2x2x2 कहा जाता है। बोथ नेशन यूज द सेम टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, मीन्स बोथ नेशंस हैव एक्सेस टू एंड यूज द सेम जनरल प्रोडक्शन टेक्निक्स। यानी अमेरिका अगर है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहा है, और इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के प्रोडक्शन में लेबर कम लगता है और कैपिटल ज्यादा लगता है, पूंजी ज्यादा लगती है, अर्थात वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हुई। और अगर किसी भी टेक्निक में कैपिटल कम लग रहा है, लेबर ज्यादा लग रहा है, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हुई। ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। तो बोथ नेशंस आर हैविंग द एक्सेस ऑफ यूज ऑफ सेम जनरल प्रोडक्शन फंक्शन, that is q is the function of L and K। commodity X is labor intensive and Y is capital intensive in both nations। हमने पहले ही आपको बताया, मीन्स द लेबर कैपिटल रेशियो अर्थात L/K इज हायर फॉर X देन Y इन बोथ नेशंस एट द सेम रिलेटिव फैक्टर प्राइस। इतनी देर से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक लेबर इंटेंसिव करेगा, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग कर रहा है। बोथ कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड अंडर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इन बोथ नेशंस। अर्थात आपको जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए थे, तो उसमें याद होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तीन तरह के आपने स्केल पढ़े हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ बाय एजम्पशन इट हैज बीन टेकन दैट कि amount of L and K will increase output in the same production। अर्थात लेबर और कैपिटल का जो रेशियो लगाएंगे हम, उस रेशियो से हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेगा। क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलने का मतलब यह है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होने का मतलब यह है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घट रही है। तो हम अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब होता है जैसे जैसे हम लेबर की एक या एक्स्ट्रा यूनिट लगाते जा रहे हैं, उससे हमको मिलने वाला प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटने का मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे लेबर की एक एक्स्ट्रा इकाई हम एम्प्लॉय करते जा रहे हैं, अर्थात लगाते जा रहे हैं, उससे हमको प्रोडक्शन घटती हुई मात्रा में मिल रही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वी हैव हेक्स्टर-ओलिन हैज टेकन बाय एजम्पशन कि ना तो हम इंक्रीजिंग रिटर्न की बात कर रहे हैं, ना हम डिक्रीजिंग रिटर्न की बात कर रहे हैं। अर्थात हम लेबर लगाएं या कैपिटल लगाएं, हम जिस रेशियो में लेबर और कैपिटल को लगाएंगे, उससे हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेगा। अर्थात बढ़ते हुए नहीं, घटते हुए नहीं, बल्कि कांस्टेंट स्थिर रूप से, जैसे 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ। दिस इज नोन एज द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। There is incomplete specialization in production in both nations। देखिए, अगर means that even with free trade both nations continue to produce both commodities, this implies neither nation is very small। कई बार ऐसा होता है कि
दोनों देशों को दोनों प्रोडक्शन कमोडिटी के प्रोडक्शन में एक्सपर्टाइज हासिल होता है. Sometimes it happens कि both countries are having the expertise in both type of productions. एक्सपर्टाइज तो है. अमेरिका में अगर हम अमेरिका का जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अगर अमेरिका में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करना चाहे तो दे आल्सो हैव द एक्सपर्टाइज. और अमेरिका में अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करना चाहें तो दे आल्सो हैव द एक्सपर्टाइज इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेकिन और अगर फ्री ट्रेड है अर्थात कैपिटल अमेरिका से इंडिया मूव कर सकता है और लेबर इंडिया से अमेरिका मूव कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड का बेस क्या होगा? क्योंकि अगर कैपिटल और लेबर का फ्री मूवमेंट कर दिया जाए तो ट्रेड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई कैपिटल और लेबर इंटेंसिव टेक्निक फिर यूज करके कैपिटल वाले प्रोडक्ट और लेबर वाले प्रोडक्ट दोनों को इंडिया भी बनाना शुरू कर देगा और अमेरिका भी कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा. तो देन व्हाई दे विल हैव बोथ हैव द ट्रेड? तो फॉर दैट पर्पस ये कहा गया कि लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, सवाल ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज कितने कहां पर है? स्वाभाविक सी बात है कि इन both the countries the availability of resources cannot be the same, therefore it is incomplete specialization. अगर इंडिया चाहे तो लेबर इंटेंसिव, क्योंकि लेबर यहाँ इसलिए अवेलेबल है, सस्ता होगा. स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका के कंपैरिजन में लेबर इंडिया में सस्ता होगा. तो अगर और चूंकि अगर इंडिया स्पेशलाइज्ड है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करना भी चाहेगा तो दैट विल बी कॉस्टलियर, महंगा होगा. वो टेक्निक का प्रयोग करना महंगा पड़ेगा उसके लिए. सेम टाइम अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका में कैपिटल इजीली अवेलेबल है तो उसको कैपिटल का यूटिलाइजेशन करना उसके पास इजी है, सस्ता पड़ेगा. लेकिन लेबर उसके पास अवेलेबल उतनी मात्रा में नहीं है. although they are having the technique of using the labor, लेकिन इसके बावजूद अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करेंगे भी तो उनके लिए महंगा पड़ेगा. इसलिए on the basis of the availability of the resources in both country they should have the trade. अगला आता है टेस्ट आर इक्वल इन बोथ नेशंस. हाँ भाई, अगर टेस्ट का डिफरेंस आ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर मींस डिमांड प्रेफरेंस आर आइडेंटिकल इन बोथ नेशंस व्हेन रिलेटिव प्राइस आर इक्वल इन द टू नेशंस बोथ कंज्यूम एक्स एंड वाई इन द सेम प्रोपोर्शन. मतलब हमको अमेरिका के प्रोडक्ट जो भी है, मान लीजिए हम वहां से आईफोन मंगा रहे हैं या मोबाइल मंगा रहे हैं, अमेरिका मान लीजिए हमारे यहाँ से कपड़े मंगा रहा है और एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स मंगा रहा है, मसाले मंगा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मसाले या जो कपड़े हम पसंद कर रहे हैं वही मसाले और वही कपड़े अमेरिका वाले भी पसंद करेंगे. और अगर हम अमेरिका से मंगा रहे हैं तो अमेरिका में जो फोन, आईफोन या जो मोबाइल पसंद की जा रही है वही हम भी पसंद कर रहे हैं, तभी तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको इंपोर्ट क्यों करेंगे? अमेरिका अगर हमारे प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेगा तो वो हमारे प्रोडक्ट को क्यों तो इंपोर्ट करेगा? तो इसका मतलब टेस्ट और प्रेफरेंसेस, यानी जो अमेरिकन पसंद कर रहे हैं वही हम भी पसंद कर रहे हैं, जो हम पसंद कर रहे हैं वही अमेरिकन पसंद कर रहे हैं. दिस इज द बेसिस ऑफ द ट्रेड. And next is there is perfect competition in both commodities and factor markets in both nations. Perfect competition का मतलब मैंने कल भी बताया था कि producers, consumers and traders of X and Y product in both nations are each too small to affect the price of commodities. Means they cannot affect the price. प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय द मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन तो यही होता है ना कि कोई भी सेलर इंडिविजुअली
मार्केट की प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता है। प्राइस कहाँ डिटरमिन होता है, मार्केट में कैसे डिटरमिन होता है, डिमांड और सप्लाई से। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि देयर इज ए परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। एल एंड आर का मतलब हुआ कि लेस इंटेंसिव एंड less intensive product and high intensive products, both are commodities price equal their cost, uh, leaving no economic profit. Next is there is a perfect factor mobility within each nation but no international factor in mobility. ये देखिए हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज में भी यही बात कही थी, कंपैरेटिव एडवांटेज में भी यही बात कही थी, और फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरी में भी सेम चीज कही जा रही है कि विद इन नेशन तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूवेबल है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी नहीं है। मीन्स कि कैपिटल एंड लेबर के एंड एल आर फ्री टू मूव फ्रॉम एरियाज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ लोअर अर्निंग्स to those of higher earnings until earnings are the same in all areas, uses and industries of the nation. International differences in earning persist due to zero international factor mobility in the absence of the international trade. हम यही कह रहे हैं कि अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास दो एरिया है कि एक कपड़े बनाता है, दूसरा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाता है। तो लेबर को हम इन दोनों सेक्टर में इंटरचेंज तो कर सकते हैं कि लेबर मूव कर जाए क्लॉथ इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में, या लेबर मूव कर जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एफएमसीजी प्रोडक्ट में। लेबर मूव कर जाए फ्रॉम दिल्ली टू साउथ बैंगलोर या फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली, बट इन दैट केस की लेबर मूवमेंट फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअल कंडीशन में तो ये होता है, बट इन द theory it has been taken assumption that these factors of production means capital and labor are immovable. There are no transportation cost, tariffs and other obstructions on the free flow of international trade. हमने पहले भी कल भी बताया था कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में भी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टैरिफ्स है और अदर ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जैसे कोटा है, कस्टम ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है और भी टैक्सेस जो लगाए जाते हैं, दे आर फ्री। मतलब देयर इज नो टैरिफ, देयर इज नो कोटा, देयर इज नो कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में होता है। तो एक्चुअल कंडीशन में ऑल दीज आर हैविंग द effect on the international trade, but here it has been taken by assumption that these are not having the effect on the international trade. All resources are fully employed in both nations. ये comparative advantage में भी यही assumption लिया गया था कि जितने factors of production हैं हमने यहाँ पर माना है capital and labor को, both are fully employed. International trade between the two nations is balanced, means that the total value of each nation's exports equal the total value of national imports. मतलब जितने का वो एक्सपोर्ट कर रहा है उतने का ही इंपोर्ट कर रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बार्टर सिस्टम में करें। अगर हम मनी एक्सचेंज के माध्यम से कर रहे हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो कि रियल वर्ल्ड में जो होता है, तो ऐसे में कभी एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, कभी इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बाई assumptions it has been taken that balance of trade, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, आर बैलेंस्ड। जितना जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतने का ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अर्थात जितने का एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतने का ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। On the basis of these assumptions, the Hexter-Only theorem predicted that the capital surplus country specializes in the production and exports of capital-intensive, and the labor surplus country specializes in the production and exports of
लेबर इंटेंसिव गुड्स। इतने पूरे सरप्लस में हमने पूरी थ्योरी में अभी तक आपको यही बताया कि जिसके पास कैपिटल सरप्लस है वो कैपिटल सरप्लस गुड्स का प्रोडक्शन करेगा और उसका एक्सपोर्ट करेगा, और जिसके पास लेबर सरप्लस है वो लेबर सरप्लस गुड्स का प्रोडक्शन करेगा और वो उसका एक्सपोर्ट करेगा। हमने इसको बहुत शार्ट में लिखा हुआ है। इन ए वर्ड ऑफ टू कमोडिटीज टू फैक्टर्स वाई इज कैपिटल इंटेंसिव, इट्स के बाई एल इज ग्रेटर देन के बाई एल ऑफ एक्स। टू फैक्टर्स हैं, if production of y requires 2k and 2l, then k by l will be 1, and if production of x requires 1k and 4l, then capital output ratio will be, capital and labor output ratio will be 1/4. In this way, इस तरह हम कह सकते हैं कि y is capital intensive and x is labor intensive। क्यों? क्योंकि यक्स के प्रोडक्शन में लेबर ज्यादा लग रहा है और कैपिटल कम लग रहा है, और वाई के प्रोडक्शन में आप ऊपर देख सकते हैं कि के बाई एल 1 है। इसका मतलब है कि एक ही लेबर और एक कैपिटल से हम एक वाई का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जबकि यक्स के प्रोडक्शन में एक कैपिटल के साथ हमें 4 लेबर लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर 1/1 है, यहाँ पर 1/4 है। We say that y is k intensive and x is l intensive. K मतलब capital intensive and x is labor intensive. Measuring k and l intensive depends on k by l rather than the absolute amount of k by l. इन अब आगे एक फिगर हम दिखा रहे हैं, उस फिगर के माध्यम से हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए नेशन वन में अगर हम देखते हैं तो नेशन वन प्रोड्यूसेस के बाई एल, ये अगर हम y1 वाली लाइन को देखें तो इसमें नेशन वन के लिए क्या है, कैपिटल और लेबर दोनों सेम मात्रा में लग रहा है। जितना वो लेबर लगा रहा है, अगर हम इस पॉइंट पे देखें जहां पर 1y लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं ना, 1y वाले पोजीशन पे देखिए कि 2 लेबर लगा रहा है तो 2 ही कैपिटल लगा रहा है, अर्थात कैपिटल और लेबर का उसका रेशियो 1/1 है। जबकि अगर हम इस वाली लाइन पे देखें जो ये वाली लाइन है के बाई एल, जो इसमें 1/4 लिखा है, इसके 1x वाली पोजीशन पर देखिए तो एक कैपिटल का लगा करके वो उसको 4 लेबर लगाना पड़ रहा है। अर्थात अगर वो इस लाइन को फॉलो करे, नेशन वन इस लाइन को फॉलो करे, तो वो उसको कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनानी पड़ेगी, और इसके इस पोजीशन करने में उसको चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाए और चाहे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाए। ठीक, अब जरा नेशन 2 में आइए। नेशन 2 में जरा देखिए के बाई एल वाई इज इक्वल टू 4 जहां लिखा हुआ है, उसके इस पॉइंट पर देखिए जहां हमारा कर्सर घूम रहा है, 1 वाई वाले पोजीशन पे 4 कैपिटल और एक लेबर लगा करके प्रोडक्शन हो रहा है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग कर रहा है, 4 कैपिटल और एक लेबर लगा करके। ठीक, अगर इस वाली लाइन को देखें तो वही सेम कि ये चाहे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करे चाहे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करे। लेकिन अब ध्यान दीजिए ट्रेड क्यों होगा। नेशन वन, चूंकि नेशन वन में लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहा है। नेशन 2 में कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल सरप्लस है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग कर रहा है। बहुत आसान सा एक बढ़िया सा फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा तो बहुत आसानी से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, और फिगर बहुत कठिन नहीं है। ये दिया हुआ है कि अगर ये करना चाहे तो ये कर सकता है कि लेबर और कैपिटल दोनों का, लेकिन ये करेगा नहीं क्योंकि उसके यहाँ या तो लेबर ज्यादा होगा या तो कैपिटल ज्यादा होगा। तो नेशन 2 में कैपिटल ज्यादा है तो वो इस पॉइंट पर प्रोडक्शन करना चाहेगा, और क्योंकि नेशन 1 में लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करना चाहेगा। पूरा एक्सप्लेनेशन इस वाले स्लाइड में मैंने वही चीज लिखी हुई है जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था। Therefore, Y is the K intensive commodity and X is the less intensive in nation 2। हमने यही चीज कहा कि क्या करेगा नेशन 2, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करेगा। दिस इज शोन बाय द फैक्ट द रे फ्रॉम द ओरिजिन फॉर गुड
y is steeper than the that x of both nations. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया फिगर में, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है. Even though y is k intensive relative to x in both nations, nation 2 uses a higher k by l than nation 1. For y, k by l is 4 in nation 2, but k by l is 1 in nation 1. For x, k by l is 1 in nation 2, but k by l 1 by 4 in nation 1. तो हमने फिर क्या कहा, नेशन 1 क्या करेगा कि 1/4 का प्रयोग करते हुए लेबर इंटेंसिव का प्रयोग करेगा, और नेशन 2 k by l 1/4 अर्थात कैपिटल इंटेंसिव का प्रयोग करते हुए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करेगा. और अगर ऐसा दोनों करते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं इसको. ये नेशन 1 का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, और ये नेशन 2 का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा. उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं इसको. इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. अगर यक्स कमोडिटी अर्थात नेशन 1 प्रोडक्शन करना चाहे तो यक्स की वो ज्यादा मात्रा प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि नेशन वाई की ज्यादा मात्रा को प्रोड्यूस कर सकता है. ऐसे में नेशन यक्स को यक्स वाई की कमोडिटी की प्रोडक्शन को छोड़ करके यक्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए, और नेशन 2 को वाई कमोडिटी का एक्सपर्टाइज करते हुए यक्स कमोडिटी को छोड़ करके वाई कमोडिटी में एक्सपर्टाइज करना चाहिए. ठीक है. सिंस वी आर रनिंग वेरी लेस टाइम, सो हमने अभी आपको इस फिगर को एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी जो थ्योरी लिखी हुई है वो आप पढ़ लीजिएगा. दिस वाज ऑल. अगर आपको कोई भी इसके बावजूद है तो शंका है, पहले एक बार इसको सुन लीजिएगा, इसके बाद आप भी पूछने के लिए यू आर ऑल फ्री फॉर आस्किंग एनीथिंग. You are all free for asking anything. Thank you very much.